So praise the Lord, greetings in Jesus name. मसीह यीशु के नाम में आपकी सलामती हो. आपकी भी सलामती हो. God bless you all. खुदा सबको बरकत दे. आपको भी बरकत दे. So today the topic that I will be teaching is called mystery of spiritual attacks. जिस unवान पे मैं आज बात करूँगा उसका मतलब है रूहानी हमलों का भेद. So I want to make sure and I want to tell everyone that's watching the video as well as you guys that I will be going bilingual in my own native language, that is Urdu as well as in English. So मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं दो ज़ुबानों में चलूँगा, उर्दू इंग्लिश दोनों में. So that the people that understands the English will be able to understand English through YouTube, and the people that want to hear in Urdu will be able to hear in Urdu. So जो लोग इंग्लिश में सुनना चाहते समझते हैं वो YouTube से इंग्लिश में समझेंगे, जो उर्दू में वो उर्दू वाले समझ लेंगे. So now let's start. So the topic that I have is mystery of spiritual attacks. जो उन्वान मेरे पास है वो है रूहानी हमलों का भेद. Alright, and the subtitle is prayerless pastors, churches and ministry. और उसका जो सबटाइटल है वो है दुआ के बगैर खादम पादरी, दुआ के बगैर चर्चेस और दुआ के बगैर मिनिस्ट्रीज. इन्हां दा की हशर हुंदा है वो भी दसांगा. So I will also tell you the consequences that prayerless pastors, churches and ministries suffer. All right, now let's move on. Any attack by the devil on the believer's life, either it's financial, emotional or physical, like sickness, even spiritual, directly or indirectly, it is aimed to target or damage one main thing of a believer. कोई भी अटैक हो शैतान का एक ईमानदार की ज़िंदगी में, ठीक है, चाहे रुपए पैसों के लिहाज से हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, बीमारी हो, ठीक है, चाहे रूहानी हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शैतान एक ही चीज़ पे हमला कर रहा होता है और उसको डैमेज करना चाह रहा होता है. एंड दैट इज़ नॉट योर हेल्थ. And that is not your money. The Satan is not after your health, your money, or your ministry, but he is after only one thing, and that is your very prayer life. शैतान आपके जिस्म और आपकी सेहत के पीछे नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, ना वो आपके पैसों के पीछे पड़ा है, ना ही आपकी मिनिस्ट्री के पीछे पड़ा है. उसको बस आपकी एक ही चीज़ चाहिए और वो है आपकी दुआया ज़िंदगी. And that's what I spoke in Urdu. That he is not after your health, money or your ministry. He is after just one thing, and that is your prayer life. वो ना आपके सेहत के पीछे है, ना पैसे के पीछे है, ना ही आपकी खदमत के पीछे है. करते रहो. He is after only one thing, and that is your prayer life. वो एक ही चीज़ के पीछे है और वो है दुआया ज़िंदगी. This is what the Lord Jesus told me, that believers' prayers life is the main agenda of the enemy. और यही चीज़ मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने बताई कि ईमानदार की दुआया ज़िंदगी शैतान का टारगेट होती है. मेन टारगेट यही है, यही एजेंडा इसका, और कुछ भी नहीं है. So the Lord Jesus spoke to me and taught me this: the main target of the Satan is believers' prayer life and nothing more. That's the main thing that he goes after. तो यीशु मसीह ने मुझे बताया और सिखाया कि ईमानदार की दुआया ज़िंदगी के पीछे वो शैतान टूट के आता है और वही उसका मेन टारगेट है और कुछ भी नहीं. सुनते जाएं. So enemy is not attacking different areas of your life like your money or health or education. These things are just in the way. Enemy is not attacking different areas of life like your money or health or education. These things are just in the way, and these things are just mere tools or source through which devil wants to shut down your prayer life. मैं उर्दू में बोलना चाहूँगा. So इब्लीस है वो आपके डिफरेंट एरियाज ऑफ जिंदगी पे अटैक नहीं कर रहा. जैसे आपके पैसे, आपका जिस्म यानी आपकी सेहत, आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिलीज, ये सिर्फ उसके रास्ते में आ रही हैं. ये क्या हो रही है? उसके रास्ते में आ रही हैं, और ये सब चीजें एक जरिया है और उसका हथियार है. इनको हमला करके आपकी दुआया जिंदगी को वो मार दे. Alright? Prayer life is the real thing demons are after, not your money or your health. Your money and health cannot affect demonic world unless you pray hard enough. Then your prayer causes havoc to the demonic world. आपका पैसा, आपकी सेहत और आपकी फैमिली शैतान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ना उखाड़ सकती है.
तो इसलिए वो आपके पैसे और आपकी सेहत और आपके फैमिली के पीछे नहीं है। एक ही चीज़ है जो शैतानी दुनिया को हिला के रख देती है, और वो है दुआ या जिंदगी। And that's what I told, that the only thing that shakes Satan's kingdom is not your money, it's not your family, it's not your health. It is one and only thing, that is your prayer life. Okay? So they attack your prayer life through any area available to them, like your health, family, finances, etc. So वो आपकी दुआ या जिंदगी पे हमला करते हैं। कोई भी वो एरिया आपकी जिंदगी का जो उसके लिए खुला हुआ है, जो अवेलेबल है, ठीक है ना, जैसे कि सेहत, फैमिली या रुपया पैसा। So by disturbing these areas like health, family or finances, they are able to distract you and they are able to distract your focus from prayer to your sick child or loss that you had in business. Now you can't pray because your focus is on these areas and you're discouraged. So अब शैतान हमला किस तरह करता है? आपके फैमिलीज में, आपके फाइनेंसेस पे अटैक करके, आपके बच्चों को बीमार करके, ठीक है ना। अब आपका फोकस दुआ से उनके ऊपर लगा देता है। अब आप दुआ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको पता है आपका बेटा बीमार है। अब आप दुआ नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको पता है आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं आई या बिजनेस में नुकसान हो गया। अब ये सारे कामों में बिगाड़ ला के वो आपकी दुआ बंद करता है। So that's how he stops the prayer, by making your child sick or having a loss in the business, and now you're more concerned about those things, and now you're distracted from the prayer, and that's how the enemy starts doing his schemes. Okay? Demons attack these areas of our lives to get us frustrated and so busy, so much in our problems that we fall away from prayer, and now we have no protection, no prayer protection. We are naked before demons. तो शैतान क्या करता है, बदरुएं क्या करती है, हमें इतना फ्रस्ट्रेट, ज़हनी तौर पे हमें अपसेट कर देती है, हमारे घर वालों को बीमार करके, हमें इतना ज़्यादा बिजी करके दुनिया की चीज़ों के अंदर कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमारे पास दुआ का टाइम नहीं है और हम बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला हार जाते हैं दुआ ना करके। अब हम रूहानी आलम के अंदर बिल्कुल नंगे हैं शैतान के हमले के लिए। Now listen to me. Are you ready? Yes. If because of your studies, family, health, or even because of your church activity, or even because of your ministry, your prayer life is shut down, devil has succeeded in his mission. I will repeat that in English and then I will translate that in Urdu. Listen. If because of your studies, your family, your health, or even because of your church activities, and even because of your ministry, if your prayer life has been shut down, devil has succeeded in his mission. अगर आपकी पढ़ाई की वजह से, अगर आपकी नौकरी की वजह से, अगर आपके ख़ानदान की वजह से, अगर आपकी चर्च में खिदमत जो आप दे रहे हैं उसकी वजह से, या आप जो मिनिस्ट्री चला रहे हैं उसकी वजह से आपकी दुआया ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो मुबारक हो, शैतान ने अपना काम कर दिखाया और वो कामयाब हो गया चर्च और खिदमत के ज़रिए भी। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ नहीं है। शैतान जीत गया क्योंकि खिदमत और चर्च दुआ के बगैर बेकार हैं। वो कभी खिदमत से नहीं रोकेगा, ना चर्च से रोकेगा, वो दुआ से रोकेगा। और जिस चर्च और खिदमत में दुआ है उसको पता है वो जोरावर है। So he will never stop you from ministry or church. He will stop you from praying, because praying church and praying ministry is threat to him, is effective. And if because of church, if because of your church, and if because of your ministry that you're doing, you have stopped praying because you don't have time to pray, to be with Jesus, well, listen, devil has succeeded in his mission. All right. So अगर चर्च की वजह से और आपकी खिदमत की वजह से आप दुआ नहीं कर पा रहे, अरे काम की वजह से तो छोड़ ही देना, चर्च की वजह से नहीं कर पा रहे और आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं उसकी वजह से नहीं कर पा रहे, तुसी देखोगे पादरी, ज़रा स्टडी करो ज़रा मार्केट चर्च जाके, आपको पता चलेगा पादरी क्यों नहीं दुआ करते, क्योंकि उनको विजिट पे जाना है। आगे बात करूँगा। All right. So what I said was just that. You will find out pastors, they will give reasons they don't have time to pray because they have to visit their church members. Yeah. And they have to run a church. They have responsibility and that's why they can't pray. Okay.
Prayer is the real threat and weapon to destroy all demon powers. दुआ जो है वो रियल खतरा है शैतान के लिए, क्योंकि वो उसके सारे हथियारों को और विद्रोहों को तबाह कर देती है. Evil spirits and witches know this, but God's people don't know this. And those who know it, like pastors, they don't practice it, for they are busy in ministry. बदरूहें जानती हैं और शैतान और जादूगर जानते हैं, मगर खुदा के लोग नहीं जानते कि दुआ ही है जो असल चीज है जो शैतान को तबाह करती है. और यहां तक कि पास्टर भी जानते हैं, मगर पास्टर दुआ करते ही नहीं है. दुआ या जिंदगी है नहीं. क्यों? क्योंकि उनको मिनिस्ट्री चलानी है और चर्च में वो बड़ा बिजी है. मैं वो वाली अब दुआ की बात नहीं कर रहा, 15 मिनट जो बैठ के मिन 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 कर लिया. ये वो वाली दुआ की बात नहीं हो रही. ये वो वाली दुआ की बात हो रही है, सुबह 7 बजे दरवाज़ा बंद हो रहा है और 3 बजे बंदा बाहर आ रहा है, वो पादरी. क्यों? क्योंकि वो अपनी कलीसिया के लिए शिफायत कर रहा था. मैं उस दुआ की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 15 मिनट्स प्रेयर्स और मैगी नूडल प्रेयर that you are just doing min and then you're praying. I'm talking about the pastor of the church is going in the room at 7 a.m. in the morning and then coming out at 3 p.m. in the afternoon. Why? Because he's interceding for his people, his church. Okay. Now, I'm talking about pastors. मैं पादरियों की बात कर रहा हूँ. They are not praying for they have to visit a church members, or they have to arrange a crusade, or they are busy in big conventions. Now they are open to attack, and in fact such prayerless crusades and conventions does nothing to devil and his kingdom. अब पादरी दुआ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको चर्च मेंबर्स को विजिट करना है, उनको क्रूसेड अरेंज कराना है, वो कन्वेंशंस के अंदर बिजी हैं, और अब शैतान उनके ऊपर अटैक करेगा. क्योंकि ऐसे दुआ के बगैर प्रेयरलेस क्रूसेड्स और प्रेयरलेस जो कन्वेंशन है, शैतान का कुछ उखाड़ नहीं सकते. पीछे हमारे पास एक बड़े सीनियर खादम बैठे हुए हैं, मोहसिन साहब. इनसे मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि ये खादमों के दरमियान रहे हैं काफ़ी. मोहसिन साहब, आप बताएं कि जब भी कन्वेंशन रखी जाती है, क्या आपने किसी खादम को देखा है उस कन्वेंशन से पहले 40 दिन का दुआ, रोज़े और फाके में ठहरे? आंसर आया नहीं. एक कन्वेंशन रखी जा रही है जिसके अंदर 40,000 लोगों ने आना है, और वो 40 दिन का फाका और प्रेयर नहीं कर सकता. What I spoke was that the convention is about to take place in which 40,000 people will come, and the pastor or the leader of that convention cannot fast and pray for 40 days. Then what is this? Why? Because he's busy to arrange that convention. क्योंकि वो पादरी बिजी है उस कन्वेंशन की तैयारियां करने में. ओह, तैयारियां करने में. Is not convention's preparation done by prayer? क्या कन्वेंशन की तैयारी दुआ से नहीं की जाती? ये कौन सी तैयारी की जा रही है? I will tell you the truth about the conventions the Holy Spirit has spoken to me. मैं आपको एक कन्वेंशन और क्रूसेड की सच्चाई बताऊंगा. पाकरू ने मेरे से बात की है इसके बारे में. Now let me share some deep stuff. अब मैं आपको कुछ गहरी चीजें शेयर करना चाहता हूँ. क्या मैं कर सकता हूँ? तैयार हैं? हैंडल कर लेंगे? ये बड़ा कड़वा सच होगा. So I want to share some deep stuff, very bitter cup of revelation. So are you ready? Satan really wants believers and pastors and ministers of the gospels to have more of such conventions and crusades. मैं आपको गहरी बात बताता हूँ और कड़वा घूंट बताता हूँ. शैतान वाकई में चाहता है ईमानदारों को, पादरियों को और अंजील के खादमों को कि वो और ज्यादा ऐसी कन्वेंशंस और क्रूसेड करें. In fact, devil is the one who's pushing such pastors to go ahead and do more of these crusades and convention and remain busy in it. यहाँ तक कि शैतान खुद उनको पुश करता है, ऐसे पादरियों और खादमों को, कि जाओ कन्वेंशन कराओ और क्रूसेड कराओ. क्यों? ताकि वो कन्वेंशंस और क्रूसेड में बिजी रहें. अब इन सब चीजों का क्या मतलब है? What does this all means? Let me go deeper. Devil will even finance these big crusades and conventions and will make you a good money out of it. यहां तक कि शैतान ऐसी कन्वेंशन और क्रूसेड के लिए पैसे भी देगा, और ऐसे पैसे देगा कि आप खुद भी जो है ना अपना प्रॉफिट कर सकते हो उसके अंदर से. क्या आजकल खादिम कर नहीं रहे? हाँ,
Are not today pastors having big crusades and conventions to make money out of it and have a profit? Yes, they are. Now let me go even more deeper. अब मैं और गहरा में जाऊंगा. जाऊं? Okay, now listen. Now is the devil working for the kingdom of Jesus by helping these pastors with these crusades? क्या अब शैतान जो है यीशु की बादशाही के लिए काम करना शुरू हो गया कि इन पादरियों की हेल्प कर रहा है कन्वेंशन करवाने में? By the way, कुछ कन्वेंशंस आ रही हैं अभी. Anyway, no, the devil is real smart. अबलीस बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है ना? वो क्यों कन्वेंशन कराने में मदद कर रहा है? Why is the devil helping in even financing such conventions and crusades? You know why? Because he's real smart. He knows the prayerless conventions and crusades and churches does not harm or work against him. In fact, it supports his kingdom of darkness. And I will tell you how. शैतान बहुत तेज है, शातिर है, वो जानता है, वो इसलिए पैसे दे रहा है कि करो ये कन्वेंशन करो ताकि तुसी मसरूफ रहो दे अंदर, क्योंकि वो जानता है दुआ के बगैर किए जाने वाले कन्वेंशन और क्रूसेड उसका नुकसान नहीं करते बल्कि उल्टा उसका फायदा करते हैं. और वो फायदा कैसे करते हैं मैं वो भी बताऊंगा. किस किस की आज अकल खुल रही है? तो कन्वेंशन की लाइटों और लोगों को देख के हैरान नहीं हो. डोंट बी अमेज्ड by the people in the conventions, the crowd in the convention and the lights, because you don't know what is happening behind the curtains. तो आप कन्वेंशन की लाइटें और भीड़ों को देख के हैरान ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता पर्दे के पीछे क्या हो रहा है. पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? डील हो रही है. और क्या हो रहा है? The deal is going on. How much profit will the pastor will make? That's a sad reality. Not all of them are like that, but many of them are. सारे एक जैसे नहीं है, मगर मेजॉरिटी में ऐसे ही हैं. ओके, अब मैंने बात की कि शैतान क्यों ये क्रूसेड खुद करवा रहा है कि करो करो, इजाजत दे रहा है, रोकता नहीं है. हाँ, और क्यों मदद कर रहा है? इसकी वजूहत क्या? Why is Satan supporting such conventions? He is allowing it. He is even financing it. What's the reason behind it? And why he is doing that? And how does these conventions support the kingdom of God? Let me share. That by doing such prayerless conventions and opening prayerless churches and ministries, Satan can keep you out of God's perfect will and perfect plan, which could be something else for you. वो इसलिए आपको जो है कन्वेंशन और क्रूसेड करवाने देता है जो दुआ के बगैर होते हैं, प्रेयरलेस होते हैं, यानी उसके पीछे कोई दुआएं नहीं होती. वो इसलिए करवाने देता है ताकि आप इस तरह की कन्वेंशनें करवा के, इस तरह के चर्च खोल के, इस तरह की मिनिस्ट्रियाँ चला के जिनमें कोई दुआ नहीं हो रही, खुदा की परफेक्ट मर्जी और परफेक्ट प्लान जो उसने आपके लिए रखा उससे बाहर हो, क्योंकि हो सकता है वो परफेक्ट मर्जी आपके लिए कुछ और हो, और वह कन्वेंशनों में आपको फंसा के परफेक्ट मर्जी से बाहर रहता है, आपको बाहर रखता है. माय गॉड, किसी को समझ भी लगी मैंने क्या बोला? Satan allows people, pastors, and even funds them to have conventions so that he or big crusades so that he can keep them out of God's perfect will, and they are busy doing what God has not called them to do. कितने लोगों को बात समझ आ रही है? And that is why devil will even finance such conventions and even fund and push pastors to open more of such churches all over the city and streets where prayer, life and holiness has no value. Rather, miracles and healings and making money of those out of those conventions and churches are greatly valued. Iblis खुद जो है पैसे देगा और मदद करेगा, ऐसी चर्च खोलें, ऐसी मिनिस्ट्री खोलें, ऐसी कन्वेंशन करवाएं जहां पर पाकीज़गी की और दुआए ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं होगी, बल्कि वहाँ पे सिर्फ मौजों और शिफा और उसमें से आप कितना बिजनेस कर सकते हो उस चर्च उस कन्वेंशन उस मिनिस्ट्री से, उसकी वैल्यू होगी. शैतान उसमें हाथ बढ़ा के इस तरह डालेगा, करो करो. अब मैं ये सारी तफसील दे रहा हूँ ना, अब अगर आप एनालाइज करना चाह रहे हो करो ना, कौन सी मिनिस्ट्री कौन सा चर्च ऐसा कर रहा है, दूध का दूध और milk and water is separated. So how to know which convention or church is powerless? How to know, Sister Zarish, which convention or church or ministry is powerless? Okay, I have asked a question, how to know
which convention or church or ministry is powerless? The answer is simple. You can know that church or convention or that ministry is powerless by knowing they are prayerless. Prayerless. आप जान सकते हो वो चर्च, वो मिनिस्ट्री, वो खादम, वो कन्वेंशन पावरलेस है, कोई ताकत नहीं है. कैसे पता चल रहा है वो पावरलेस है? ये जानकर कि वो प्रेयरलेस है, दुआ ही नहीं करते पीछे. सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं हमारे लोग सीखें. जिन खादमों को आप जानती हैं, मैं जानता हूं, आपने उनको कितना तन्हाई पोशीदगी में आपके लिए, अपने लिए, कलीसिया के लिए दुआ करते देखा है, और उन्हें आके गवाहियां दी कि हम पीछे दुआ कर रहे थे. किसी ने एक दफा भी जिक्र किया हम इतनी दुआ कर रहे थे, इतने घंटे आके बताया? ओ, वो क्या करते हैं फिर घर पे? आपका चंदा गिनते हैं. I just ask a question. How many of pastors you know that you have been around that they told that this much hours I was praying at home for you and for ministry and for myself? And the answer was, we never saw such pastors. So if they are not praying at home for you or for themselves, for ministry, for God's purposes, what are they doing? Are they calculating how much cash they made out of your tithes? Is not that thing to be noticed? क्या ये चीजें गौर फिक्र नहीं है? Ask them. पूछें अपने खादम से, how much do you pray? आप कितनी दुआ करते हैं? I will tell you why. We will learn. मैं बताऊंगा क्यों, हम सीखेंगे. मगर इससे पहले कि हम सीखें, ये मुझे बताएं कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं. How many are enjoying this? Really tell me, are you enjoying this? Yes. Now nice. Now let's move on. Now, so now, how can we identify that certain church is or convention or ministry is powerless? By knowing they are prayerless. हम कैसे जानेंगे वो फलाना चर्च, फलाना पादरी या फलानी मिनिस्ट्री पावरलेस है? ये जान के कि वो प्रेयरलेस है. दुआ नहीं तो कोई पावर नहीं. अब आगे सुनो. Are you ready? Yes. Don't tell us how many prophecies you did. Don't tell us how many prophecies you did. Tell us how many prayers you did. हमें ये नहीं बताओ कितनी आपने नबूतें की थी स्टेज पे, हमें ये बताओ कि कमरे में आपने कितनी दुआएं की थी. Don't tell us how many prophecies you did on the stage. Tell us how many prayers that you did in your room. Because that's what makes the difference. क्योंकि ये फर्क पैदा करती है. Because devil is not afraid of your prophecies, he is afraid of your prayers. Even witches do future telling. So you don't shock them by prophecy, you devour them by fire-filled prayers. तो अबलीस जो है ना, वो आपकी नबूतों से परेशान नहीं होता, वो आपकी दुआओं से डरता है. पता है क्यों? क्योंकि बदरूहें भी जो है ना, वो किसी हद तक जो है ना फ्यूचर बताती हैं. उनके पास हाथ पड़ा हो, वो आपको बताएंगी. तो आप उनको नबूवत करके हैरान नहीं करते, बल्कि आप उनको दुआ करके परेशान करते हो. कितने लोग समझ रहे हैं? All right. Do you know Satanists and witches, they focus more on demonic prayer to Lucifer than just impressing people with their demonic prophecies that they can read minds or tell future. क्या आप जानते हैं कि शैतान के लोग जो हैं और जादूगर और जादूगरनियां जो हैं, उनका ज्यादा फोकस शैतानी दुआएं करना होता है लूसीफर के हजूर, ना के लोगों के दिमाग पढ़ के उनके फ्यूचर बता के लोगों को इंप्रेस करना. वो ज्यादा फोकस जो है ना अपनी शैतानी जादूगरों वाली जादूगरी की दुआओं पे करते हैं. You know, they do these things less. In fact, they do these things after they have prayed much to Satan. All the mind reading and all of that. So ये जो दिमाग पढ़ना, फ्यूचर बताना, ये सारी चीजें जो है ना, ये कम करते हैं वो लोग, और ज़्यादा वो फोकस अपनी शैतानी दुआ पे करते हैं. और इनफैक्ट वो शैतानी दुआ करने के बाद आते हैं और हाथ पढ़ के बता रहे थे, दिमाग पढ़ के बताते हैं. तो उनको ही पता है मेन फोकस दुआ पे होना चाहिए, उसके बाद ये चीज़ें करनी है. सो देयर मेन फोकस इज ऑन डिमोनिक प्रेज एंड देन दे कैन कम एंड टेल व्हाट्स इन योर माइंड और व्हाट्स योर फ्यूचर. Though they're telling fake or lie, that's another stuff. But their main focus, even the Satanists, the warlock, their main focus is prayer. Okay.
For they know this simple spiritual hack. They can win more souls to the devil by demonic prayers than by demonic prophecies or mind reading. क्योंकि वो ये सिंपल सा कानून और ये सिंपल सा सादा सी सच्चाई जानते हैं कि वो शैतान के लिए बहुत ज़्यादा रूहें जीत सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दुआ करके, ना कि नबूवतें करके। ये बता के तेरे दिमाग में क्या चल रहा है या तेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो इससे ज़्यादा सिर्फ कमरे में बैठ के अपनी जो जादूगरी वाली दुआ होते हैं ना, वो करके खुदावन के लोगों को गुमराह करके शैतान के लिए जीत लेते हैं। They know this spiritual hack that by doing demonic prayers they can win more souls to the devil than by prophesying or mind reading. But church folks don't understand this all, nor pastors, for they love doing crusades for which they did not even prayed for. मगर चर्च के लोग इस बात को नहीं समझते कि ज़्यादा दुआ करनी है, और ख़ासकर खादम, क्योंकि वो बिजी हैं किस लिए? क्रूसेडर कन्वेंशन करवाने के लिए। वो क्रूसेडर कन्वेंशन जिसके लिए वो दुआ भी नहीं करते। माय गॉड, वो क्रूसेडर कन्वेंशन जिसके लिए वो भी नहीं करते। और क्रूसेड का नाम क्या है? दुआया क्रूसेड। आप ही दुआ नहीं की थी तो तुसी दुआ करोगे। अब मैं आपसे सच कहता हूं कि मौजे पादरी की वजह से नहीं होते, लोग जो आके दुआ कर रहे होते हैं उनकी वजह से होते हैं। I tell you the truth, it's not because of the pastors but because of the people that come over there, because of their prayer miracles happen. Now let's move on. Always remember one thing, what prophecy can't do, what prophecy can't or cannot do, prayer can do. हमेशा याद रखें, जो नबूवत नहीं कर सकती ना, वो आपकी दुआएं कर सकती हैं। जो नबूवत नहीं कर सकती वो आपकी दुआएं कर सकती हैं। I tell you the truth, men of God can win more souls to God than by staying at home and praying, than doing conventions and standing on stage and prophesying. मैं आपसे सच कहता हूँ कि खुदा के खादम जो हैं और ज़्यादा रूहें जीत सकते हैं सिर्फ कमरे में रहकर और दिल से दुआ कर कर, इसके बनिस्बत कि वो कन्वेंशंस कराएं और स्टेज पे चढ़ें और नबूवतें करें। ये मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, आगे मिसाल दूंगा कैसे। I'm talking very deep stuff. How is this possible? I will prove it. I will show it. How that a man of God can stay in the room and just pray and win more souls than going and having crusades and prophesying and winning. I will show you how. I'm not saying don't hold crusades, conventions or open churches. I'm just saying start praying. I'm just saying start praying. मैं ये नहीं कह रहा क्रूसेड नहीं करो, कन्वेंशन नहीं करो, चर्च नहीं खोलो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खोलने से पहले दुआ कर लो और दुआ पे ज़्यादा फोकस करो। I'm just saying start praying before opening churches or having crusades or conventions. अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ? Because if they had prayed not just 1 hour or 1 day, but at least a month before that big meeting, God would reveal His heart to them and His perfect will, either He wants that meeting or not, and His master plan that how He wants to do that meetings in a particular way. मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो खादम जो हैं कन्वेंशन और क्रूसेड से पहले एक दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, बट एटलीस्ट 1 महीना अगर दुआ करें तो खुदा अपने दिल की मर्जी को बताएगा कि खुदा वो कन्वेंशन चाह भी रहा है कि नहीं चाह रहा। तो कराची में आधे से ज़्यादा कारोबार बंद हो जाएंगे, and the half of the city conventions will be closed and the businesses will go down, all the money making businesses. और फिर अगर आप एटलीस्ट 30 दिन दुआ करें तो खुदा जाहिर करेगा कि वो अगर चाह रहा है कन्वेंशन तो वो किस तरह चाह रहा है और क्या करवाना चाह रहा है। हो सकता है जो गॉस्पल सिंगर आप बुला रहे हो खुदा की मर्जी नहीं है कि वो परफॉर्म करे। Maybe the gospel singer that you are calling, God does not want that person to perform. You don't even walk with God, so how can you know that? आप खुदा के साथ चलते भी नहीं हो तो आपको कैसे पता चलेंगी बातें? Okay? Now, are you ready? Because I'm about to shake you again. Are you ready? Yes. Now, this will be a little tough thing. अब ये जो चीज़ें थोड़ी सी हिला देने वाली और सख्त चीज़ होगी। सब सुन लेंगे? Everybody will hear? Okay, now listen. Movie actors and porn actors secretly do rituals and evil prayers for months and months so that when their movie comes out, it will get famous across the world just in the very first day.
जो फाशा फिल्मों के अदाकार हैं और जो ये आम फिल्में भी जो देखते हैं अदाकार है, आपको नहीं पता ये पीछे छुप के जादू करते हैं, चिल्ला काटते हैं और महीना महीना कई कई दिन जो है ये शैतानी दुआएं कर रहे होते हैं ताकि जिस दिन इनकी मूवी रिलीज हो पहले दिन वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए. Now listen more. For the porns or the films, they are doing full month rituals and demonic prayers to reach people with power and influence. Meanwhile, for gospel, pastors can't even pray full night for upcoming big events. अब जो फाशा फिल्मों के अदाकार हैं या नॉर्मल भी जो फिल्में उनके अदाकार हैं वो पूरे पूरे महीने और महीनों से ज़्यादा जादू करें और शैतानी दुआएं करें अपनी फिल्म को मशहूर करने के लिए ताकि ताकत के साथ और तासीर के साथ वो फिल्म बच्चों तक पहुंचे और वो जो है उसके आदी बने, उसके अंदर गिरे उस गुनाह के अंदर. मगर और वो अपनी फिल्मों के लिए इतनी लंबी लंबी दुआएं कर रहे हैं और हमारे खादम जो है जो इतनी बड़ी कन्वेंशन रखी उसके लिए एक दिन भी दुआ नहीं कर पा रहे. फर्क पता चल रहा है कि क्यों दुनिया के लोग खुदा के लोगों से ज्यादा कामयाब हैं. Now do you know why the people of the world are more successful than the people of the Lord? Though they are doing the wrong things, but they are doing it with hard work and they are putting all their efforts into prayer. अगर जो दुनिया के लोग गलत चीजें कर रहे हैं मगर उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और मेहनत सारी दुआ में कर रहे हैं. But the people of the Lord are not doing hard work in prayers before the Lord. मगर खुदावन के लोग जो है वो मेहनत नहीं करे दुआ में खुदावन के हुजूर. कितने लोगों का दिमाग खुल रहा है मुझे बताएं. How many people's minds are opened? Now I have a question. अब मेरा एक सवाल है. So how do you know such conventions or churches are powerless or not much effective before the devil and he supports such believers' work? तो हम किस तरह जाने कि ये कन्वेंशंस और चर्चेस जो हैं ताकत के बगैर हैं, ताकत से खाली हैं और कुछ ज़्यादा असरअंदाज नहीं है और अबलीस खुद इनको सपोर्ट करता है ऐसे ईमानदार और पादरियों के कामों को, कन्वेंशंस को. नाउ अब मैं आंसर भी देने लगा. नाउ आई एम अबाउट टू आंसर यू. आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके. तो सवाल मैंने ये पूछा कि किस तरह जाने जो कन्वेंशन क्रूसेड पास्टर करवा रहे हैं, चर्च करा रहे हैं, वो ताकत से खाली है, ठीक है, और अबलीस उसको सपोर्ट कर रहा है. So ये मेरा क्वेश्चन था and the question was that how to know that a convention or the church that the pastor is holding is powerless and the devil is supporting. How to identify? सवाल समझ आ गया सबको? अब जवाब सुनो. Now here's the answer. Just ask the pastor or the leader how much he has prayed and even his team how much his team has prayed for that our upcoming meeting, and in prayer what did God reveal, what was his perfect will and exact instruction for that meeting or service. आप सिर्फ उस पादरी से पूछें जो वो चर्च खोल के बैठ रहा है, ये कन्वेंशन करा रहा है, कि सर आपने कितनी लंबी दुआ की और आपके साथ आपकी टीम ने कितनी लंबी दुआ की और दुआ में खुदा ने अपनी परफेक्ट मर्जी क्या आपके ऊपर जाहिर की और परफेक्ट मर्जी के साथ आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए उस मीटिंग के लिए. Looks like I have your attention. लगता है कि मैंने आपकी मुतवज्जा आपको अपनी तरफ कर लिया है. Just ask that pastor how much you prayed and your team prayed. Secondly, and in that prayer, what was God's perfect will revealed to you? And thirdly, what was His instruction or plan given to you for that meeting? उस पादरी से पूछे जो कन्वेंशन आप करवाने सबसे पहले आपने कितनी दुआ की है. Secondly, जितनी दुआ की उसके अंदर खुदा ने परफेक्ट मर्जी क्या जाहिर की, वो करनी भी सी कि नहीं करनी सी. तीसरी चीज इंस्ट्रक्शन क्या थी कि उसके अंदर क्या करना था. These are three things that you have to ask. How much you prayed, the amount of prayer, how many days and time duration of prayer. Second, the revealed perfect will of God by those prayers. And third, exact instruction of God during those prayers. तो पहली चीज मैंने क्या बोली थी, द अमाउंट ऑफ प्रेयर, कितनी दुआ की, एंड द डेज ऑफ प्रेयर, कितने दिन दुआ की. What was the amount of prayer and the days of prayer? Now it looks quite stupid to ask a pastor or a man of God how much you prayed or how many days you prayed. ये बहुत बेवकूफ़ों वाली बात लगती है कि आप एक खादम से या एक पादरी से पूछो कि आपने कितने दिन दुआ की या कितनी देर दुआ की. ऐसा है ना? आप पूछ सकते हो. Good, my disciples will ask because I have trained them.
मेरे शागिर्द पूछ सकते हैं क्योंकि मैंने उनको ट्रेन किया, बिकॉज दे सी मी डूइंग दिस, क्योंकि वो मुझे देखते हैं करते हुए. You know why I am saying you are to ask them the days and the time of their prayers for that meeting. आपको पता है मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपने उनसे पूछना है कि कितने दिन दुआ की, कितने टाइम दुआ की. Do you want to know why? Tell me. Tell me. आप जानना चाहते हैं क्यों? कौन कौन जानना चाहता है कि क्यों पूछना जरूरी है, कितने दिन दुआ की और कितनी लंबी? इसलिए जरूरी है जानना. आपको पता है कि अगर एक बेबी 9 महीने से पहले दुनिया में आ जाए माँ के कोख से निकल कर, वो बच्चा इमेच्योर होता है, और इमेच्योर बच्चा खतरे में होता है कि वो मर ना जाए. ठीक है, मुश्किल से सरवाइव करता है. ठीक है, इसी तरह अगर आपने जो मीटिंग आ रही है, जितनी उस मीटिंग के लिए दुआ दरकार है वो नहीं की, आप इमेच्योर प्रेयर और इमेच्योर अपनी स्पिरिचुअल हालत लेके चले गए इब्लीस के आगे, जो कि फुली मेच्योर है और हजारों साल से जी रहा है, वो आपको तबाह कर देगा. In English it's like that. Yes, it matters to ask the amount of prayer. Yes, it matters to ask the amount of days and time spent in prayers for that meeting. Because if child comes out of mother's womb before 9 months, it's immature. You cannot fight a mature devil of thousands of years old with immature prayer life of just 1 hour or few days. किसी को समझ लगी? हाँ, ये जरूरी है पादरी से पूछना कि जो आपने मीटिंग रखी है उसके लिए आपने कितने दिन और कितनी लंबी दुआ की. क्यों पूछना है? क्योंकि अगर एक बच्चा माँ के रहम से 9 महीने से पहले बाहर आ जाए, वो इमेच्योर होता है और वो दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता. इसलिए आप जो हो अपनी इमेच्योर हालत लेकर इब्लीस के आगे नहीं जा सकते, जो हजारों साल से जी रहा है, और अपनी इमेच्योर दुआया जिंदगी उसके सामने लेके नहीं जा सकते. जो आपने 1 दिन किया है, 2 दिन दुआ की, वो आपको उड़ा देगा यूं करके. मौसम समझ आई? इमेच्योर बंदा, क्या जो बच्चा अभी बेबी पैदा हुआ है जो इमेच्योर है, वो बड़े से फाइट कर सकता है? नहीं कर सकता. इफ यू हैव नॉट प्रेड मच, यू आर इमेच्योर एंड यू कैन नॉट फाइट द मैच्योर डेविल. कितने लोगों के माइंड इज ओपनिंग, स्पिरिचुअल चीजें समझ आ रही हैं? ओके, सेकंड चीज मैंने कही, रिवील्ड विल, the perfect will of God. The second thing that I talked about was the revealed perfect will of God. It's important to know God's perfect will. ये जरूरी है कि आप खुदा की जो है कामिल मर्जी जाने. What did the Holy Spirit said? Did he said yes, go ahead and do this meeting and I'm with you in this meeting? क्या रूल कुदस ने आपसे कहा कि जाओ ये मीटिंग करवा लो और मैं इस मीटिंग में आपके साथ हूं? Firstly, you have not prayed enough. Secondly, perfect will was not revealed to you. Then tell me, by whose permission did you enter the devil's territory? पहली बात, आपने दुआ नहीं की. दूसरी बात, खुदा ने आपको अपनी परफेक्ट मर्जी नहीं बताई. तो तीसरी बात ये, तो फिर तुसी आपने किससे पूछ के इब्लीस की जो टेरिटरी में कदम रखा? आपने किससे पूछ के इब्लीस के इलाके के अंदर कदम रखा? अब मोहसिन भाई हमारे आए हुए, इन पे मैं सारी मिसालें दे रहा हूँ. इनका ताल्लुक फोर्स से है. अब ये अपनी बड़े कमांडर की इजाज़त के बगैर किसी चले जाएं किसी इलाके के अंदर, वो इनको हिफाजत देंगे? पीछे से कह रहे हैं नहीं देंगे. क्यों? और इनका क्या होगा? ये जख्मी हो जाएंगे और अटैक हो जाएगा. कोई पता नहीं है बचे ना बचे, क्योंकि पूछे बगैर चले गए थे. जस्ट लाइक दैट, आप यीशु से पूछे बगैर अगर कन्वेंशन क्रूसेड करवा लो ना, किसी शैतान के इलाके में घुस जाओ, बुदरुएं आपके घर को तबाह कर देंगे और यीशु नहीं बचाएगा आपको. फिर आप पादरियों के बच्चों को शराब और चरसों पे देखते हो. क्यों? इसीलिए ये एक रीजन है. So I ask was that even in the physical army, that if you go without the permission, the enemy will attack you and the army won't come after you to protect you. Why? Because you did not ask your commander. Such thing happens to pastors, and then you find the children are addict because there was no spiritual protection. They went without permission. Now listen, because if the Holy Spirit did not say yes to you, no, you now
you are know that you are now on your own with your team, and the devil knows you that you have broken God's perfect will by coming into devil's territory. Now you put your own life and even your family and team's lives on the risk. अब उर्दू में सुनो. अब क्योंकि रूल कुदस ने आपको यस नहीं बोला वो कन्वेंशन या वो मीटिंग करवाने के लिए, ठीक है. अब आप जो जा रहे हो, आप अपने आप के ऊपर जा रहे हो और अपनी टीम को भी जो है अपनी मर्जी से लेके जा रहे हो. और अब शैतान जानता है कि आपने खुदा की परफेक्ट मर्जी तोड़ दी क्योंकि वो नहीं थी. और फिर क्या होता है, और आप उसके इलाके में आ गए हो, और अब ना सिर्फ आपने अपनी ज़िंदगी बल्कि अपनी ख़ानदान की ज़िंदगी और जिनको साथ लेके गए हो अपनी टीम, उनको भी रिस्क पे डाल दे कि प्लीज़ उनको चीर फाड़ दे, क्योंकि आपने खुदा की मर्जी जानी नहीं. क्यों नहीं जानी? क्योंकि आपने दुआ करी नहीं. So that's what happened, because you did not consult the Holy Spirit. He never said yes, and you entered the devil's territory without his permission, and now you put your life, your family's life, and even the team members' life on the risk, because now devil has legal rights over you because you did not pray and ask the Lord's will, and you did it on your own. कितने लोग समझ रहे हैं? So why is this happening? ये ऐसा क्यों होता है? Because you did not pray long enough to know his perfect will. आपने इतनी लंबी दुआ नहीं की कि खुदा आपको कामिल मर्जी बताए. अब आगे सुने. Are you ready? Now you did not pray long enough for God to tell you his perfect will. For with God's perfect will comes perfect power. And with perfect power comes perfect protection. आपने खुदा की कामिल मर्जी जानी नहीं, क्योंकि अगर जान लेते तो कामिल मर्जी के साथ कामिल ताकत आती है खुदा की, और खुदा की कामिल ताकत के साथ खुदा की कामिल हिफाजत आती है. अरे कामिल मर्जी. And when devil can't attack you because you are protected by being in perfect will, and only you can attack him, then I can surely say, by God's perfect will comes God's perfect victory. जब शैतान जानता है क्योंकि ये बंदा परफेक्ट विल के अंदर है, अब मैं इसको अटैक नहीं कर सकता मगर ये मुझे अटैक कर सकता है, तो फिर जान लें कि खुदा की कामिल मर्जी रहने के अंदर शैतान आपको अटैक नहीं कर सकता, आप उसको अटैक कर सकते. क्या मतलब? खुदा की कामिल मर्जी रहने के अंदर खुदा की तरफ से कामिल फतह आती है. That's what I said. So by staying in God's perfect will, the devil cannot attack you, but you can attack him, and that's how we can know that by staying in God's perfect will, the devil can attack us, but we can attack him, and that's how we can know God's perfect will brings God's perfect victory. That is why devil supports and funds those conventions and ministries and churches that don't pray, because by doing so they are stepping out of perfect will, and by stepping out of perfect will they're stepping out of perfect plan, and by stepping out of perfect plan they're stepping out of perfect protection of God. Now devil can give them perfect defeat. क्यों शैतान जो ऐसी मिनिस्ट्रीज, ऐसे चर्चेस और ऐसे कन्वेंशंस को सपोर्ट करता है जो दुआ नहीं करते? क्योंकि जो दुआ नहीं करते उनको कामिल मर्जी नहीं पता चलती. जिनको कामिल मर्जी नहीं पता चलती उनको खुदा का परफेक्ट प्लान नहीं पता चलता. जिनको खुदा का परफेक्ट प्लान नहीं पता चलता उनको खुदा की परफेक्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलती. और जिनको खुदा की परफेक्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलती, शैतान जानता है कि इनको अंदर मैं घुसकर उनको परफेक्ट तबाह कर सकता हूँ. पीछे एक भाई है, उन्होंने बहुत जोर से सर हिलाया क्योंकि मुझे लग रहा है उनका जाती तजर्बा है. अब आगे सुने. Now listen more. That is why even ministry is not a threat to Satan and his forces. He can easily put corruption in it and pervert it. इसलिए जो मिनिस्ट्री है वो शैतान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वह आसानी से, ठीक है, और उसकी फौजें आसानी से उसके अंदर बिगाड़ डाल सकती है, करप्शन डाल सकती है और उसको खराब कर सकती है मिनिस्ट्री को. In fact, devil don't even fight many ministries. They support them. The devil support them, for they are out of God's perfect will and indirectly benefiting Satan himself. कुछ मिनिस्ट्री ऐसी हैं जिनके खिलाफ शैतान जंग नहीं करता, उल्टा उनको सपोर्ट करता है. पता है क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि वो खुदा की परफेक्ट मर्जी से बाहर है और वो उल्टा शैतान का फायदा कर रही है. Oh, I remember, Holy Spirit, you're so right. बाबरू मेरे से बात कर रहा है. एंड एक वक्त था मैंने खुदावन से पूछा, खुदा मैं किस तरह शैतान को तबाह कर दूं? मुझे इतना गुस्सा आ रहा था शैतान के ऊपर. और पाकरू ने मुझे आगे से बोला, शारून कुछ भी नहीं,
सिर्फ मेरी परफेक्ट मर्जी पूरी कर, शैतान तहस नहस हो जाएगा. There was a time I asked the Lord, Lord, how can I destroy Satan and his kingdom? And Jesus and the Holy Spirit said to me, do nothing but my perfect will and Satan is destroyed. कितने लोग समझ रहे हैं? कुछ सीख रहे हो? Too much. And the third thing is that why we are saying that receiving instruction from God before keeping any crusade, convention or opening any church. क्यों हम कह रहे हैं कि एक चर्च या क्रूसेड कन्वेंशन से पहले खुदा से इंस्ट्रक्शन मांग लो और खुदा ने आपको इंस्ट्रक्शन दी हो. नाउ बाय प्रेयर यू रिसीव इंस्ट्रक्शंस, एनी काउंसल और गाइडेंस फ्रॉम गॉड फॉर दैट बिग इवेंट. एंड इफ यू डोंट do you think you are wiser and stronger than Satan who brought 1/3 of heavenly angels down? Now you can challenge him without any proper instruction from God. हम क्यों कह रहे हैं खुदा से इंस्ट्रक्शन मांग लो उस बड़ी कन्वेंशन करवाने से पहले? अब जब कन्वेंशन पे जाओ ना, जरा ये दिमाग में रख लेना कि उसने मांगी थी कि नहीं मांगी थी. हंस रहे हैं. तमीना तारे का आ रही है. पीछे क्या चल रहा है फलूदा वो किसी को नहीं पता. ये बहुत हसास मामले हैं. I just spoke for the English people to understand, the English language viewers, that gospel singer is coming and people are excited but they don't know the backstories. What's happening? In spirit and in physical, the both realms. रूह और जिस्म दोनों में क्या हो रहा होता है? जिस्म में लोग पैसे बना रहे होते हैं और रूह में बदरूह प्लानिंग कर बना रही होती है. In the flesh people are making money and the spirit demons are making plans. Now listen. I just spoke that कि हम कह रहे हैं किसी कन्वेंशन से पहले, किसी चर्च से पहले, किसी मिनिस्ट्री से पहले इतनी दुआ होनी चाहिए कि आपको खुदा से इंस्ट्रक्शन मिले. वो इसलिए क्योंकि अगर आपको इंस्ट्रक्शन खुदा की तरफ से नहीं मिली तो क्या आपको लगता है कि आप शैतान से ज़्यादा समझदार और ताकतवर हो जिसने आसमान के 1/4 फरिश्ते अपने साथ नीचे गिरा लिए? तो क्या आपको लगता है कि खुदा से इंस्ट्रक्शन लिए बगैर आप उसका मुकाबला करके उसको गिरा लोगे जो फरिश्तों को लेके नीचे आ गए? इसका मतलब सबसे बड़े बेवकूफ कौन होते हैं? सबसे बड़े बेवकूफ कौन होते हैं? कौन होते हैं? पादरी, पास्टर्स. क्योंकि एक ऐसे दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं जिसके लिए खुदा ने बताया ही नहीं कैसे लड़ना है और वो कह रहे हैं हमें बड़ा पता है, जो फरिश्तों को लेके नीचे आ गया. हम बोल भी नहीं रहे, तुसी डरते हो. ये सच्चा कलाम है, कड़वा है. यस, ये कड़वा है. दिस इज द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड एंड इट्स वेरी बिटर but it brings healings to the bones. I won't be subjected and related to any man of God that does not walk in the perfect will of God and does not know what God is saying about him. मैं किसी भी एक ऐसे खादम के साथ नहीं जुड़ूंगा जो खुदा की कामिल मर्जी में नहीं चलता और नहीं जानता कि खुदा उसके बारे में क्या बोल रहा है. किसी ने सुना मैंने बोला भी क्या है? I will not associate with such man of God that does not know the will of God and does not know what God is saying about him. मैं ऐसे खादम के साथ नहीं जुड़ूंगा जो खुदा की मर्जी को नहीं जानता कि खुदा उससे कह क्या रहा है. That is why devil is happier for pastors who hold prayerless conventions and open churches without inquiring God's perfect will. इसलिए शैतान बहुत खुश होता है उन पादरियों के लिए जो दुआ के बगैर कन्वेंशन करा लेते हैं और चर्च खोल देते हैं क्योंकि वो खुदा की कामिल मर्जी को नहीं जानते. आगे सुने, बिकॉज विदाउट गॉड्स परफेक्ट इंस्ट्रक्शन कम्स सैटन्स परफेक्ट डिस्ट्रक्शन. क्योंकि खुदा की परफेक्ट इंस्ट्रक्शन के बगैर शैतान की परफेक्ट डिस्ट्रक्शन आती है. इसलिए वो खुश है, करो करो करो, खोलो चर्च, खोलो मीटिंग, करो कन्वेंशन. क्यों? इसी तरह तो पकड़ूंगा तुम्हें, परफेक्टली डिस्ट्रॉय करूंगा, तुम्हें भी तुम्हारे बच्चों को भी. और साथ में वो जो लाए थे ना प्रस्तार वाला भाई और तबलाई जो साथ लाए थे जिन्होंने पैसे चार्ज किए थे, उनको भी पकड़ूंगा. And then Satan say, come on, let this pastor and his team and his musicians have this meeting and let them make business out of him because I will rip them to ashes, burn them to ashes. Why? Because they are out of perfect will. क्योंकि वो कामिल मर्जी से बाहर है. Now listen, Satan only come against truly praying ministries.
because they are the ones that are real threat to him, because those ministries get to know the real will of God by their prayer life. The rest are controllable ministries, controlled and indirectly operated by devils. It is praying ministries that Satan cannot control. उर्दू में बोलना चाहूंगा, शैतान सिर्फ दुआइया मिनिस्ट्रीज के खिलाफ आता है, दुआइया चर्चेस के खिलाफ आता है, क्योंकि वो जानता है कि यही हैं जो मेरे लिए रियल खतरा है, क्योंकि वही मिनिस्ट्री जो है अपनी दुआइया जिंदगी की वजह से खुदा से उसकी कामिल मर्जी जान लेती हैं, और बाकी सारी मिनिस्ट्री जो दुआ नहीं करती उनको शैतान आराम से कंट्रोल कर लेता है. वो कंट्रोलेबल मिनिस्ट्री होती है, और कंट्रोल भी करता है और इनडायरेक्टली छुप कर उनको इस्तेमाल भी कर रहा होता है, इब्लीस चला रहा होता है वो मिनिस्ट्री. मगर जो दुआइया मिनिस्ट्री है, जो दुआ करते हैं, उनको शैतान काबू में नहीं ला पाता. ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? How much your pastor prays? आपका चर्च कितनी दुआ करता है? How much your church prays? Yes, it matters. हाँ, ये मायने रखता है. At least from today. शायद आज से, क्योंकि now you have known. Sister जी, I asked a pastor. मैंने एक पास्टर से पूछा जिनके साथ मैं था, and you know, और आप उनको जानती हैं. And I was very young. मैं उस वक्त बहुत जवान था. तर्जुमा करना ऐसे दोनों ज़बानों में बोल रहा हूँ. So I asked that pastor, how much do you pray? मैंने उस खादम से पूछा आप कितनी दुआ करते हो? And he manipulated me and he said that I am always praying in my heart. और उसने मुझे गोल मोल जवाब दे दिया कि मैं हमेशा दुआ कर रहा था अपने दिल में. ऐसा नो नो, आई एम आस्किंग यू हाउ मच यू प्रे बाय क्लोजिंग द डोर एंड बीइंग ऑन योर नीज बिफोर गॉड. एंड ही कुड नॉट आंसर मी. मैंने उससे पूछा नहीं, आप दरवाज़ा बंद करके, कोठरी बंद करके, घुटनों के बलों के खुदा से कितनी देर दुआ करते हो? और वो मुझे जवाब नहीं दे पाए. वाह वाह. और वो मुझे जवाब नहीं दे पाए, और खुदा उनको बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल करता है. यस, गॉड यूजेस हिम माइटली, बट ही डज नॉट प्रे. और वो दुआ नहीं करता. ये भी एक अलग चीज़ है. दैट्स अनदर थिंग. नाउ लिसन, आई हैव वन थिंग टू से. मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ. कुछ चीज़ों के लिए जो आप पादरियों की तारीफ करते हो, उनके लिए ताड़ियाँ बजाते हो ना, वही चीजों पर खुदा उन पादरियों पे तपा हुआ है. वाओ. जिन चीजों के लिए आप पादरियों के लिए तालियां बजाते हो ना और उनकी तारीफ करते हो, वही चीजों पे खुदा उनसे नाराज है. There are things that you applaud pastors for and praise them. Those are the very things God is angry on them. कुछ समझ लग रही है? कुछ चीजें जिनको देखकर आप पादरियों की तारीफ कर रहे हो ना, वही चीजें जिनकी वजह से खुदा नाराज है उनसे. कितनी अवाम है इस पादरी के पास, कितनी अवाम आती है, और खुदा कह रहे बंदे, मैंने कुछ और तेरे लिए सोचा हुआ है. अवाम इकट्ठी करना कोई बुरी बात नहीं है, करो. मैं बात कर रहा हूँ अभी परफेक्ट विल के कॉन्टेक्स्ट में. आई एम नॉट सेइंग दैट having a crowd of people to listen to the gospel is a bad thing, but right now the context is perfect will. If the perfect will is not crowd and just silent prayer in the room, don't go for the crowd. अगर खुदा की कामिल मर्जी आपके लिए मजमा नहीं है बल्कि चुप करके कमरे में दुआ है, तो फिर क्राउड के पीछे नहीं भागो. Why? क्योंकि अगर आप क्राउड इकट्ठा कर लोगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, खुदा आपसे नाराज हो जाकर आप पे गुस्सा आएगा. Because people will praise you for the crowd, but God will get offended at the crowd. You listening, Goddess? God will get angry. Now, what happens in believer's life, the main goal of the enemy, anyhow, for any sort of attack in his life is aimed to discourage a believer to shut down his prayer life, because if that prayer life is because if the believer's prayer life is not shut down, it is able to shut down demonic network. तो जो कुछ भी ईमानदार की जिंदगी में होता है, इब्लीस की यही कोशिश होती है कि उसकी दुआया जिंदगी को मार दो. क्योंकि अगर उसकी दुआया जिंदगी को वो नहीं मारेगा
तो पता है क्या होगा, शैतानी नेटवर्क जो हवाओं में है ना, वो बिलीवर उसको दुआओं से मार देगा। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एग्जाम्पल दूंगा। आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल, माई पर्सनल ओन एग्जाम्पल एक्सपीरियंस। और वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा नाइट प्रेयर्स करता था अपनी टीम के साथ मिलके। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो जब मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे नाइट प्रेयर करना शुरू हुआ, तो एक रात मेरे कमरे के अंदर लाल कलर का फरिश्ता मेरे सामने आके खड़ा हो गया और उसने बोला कि, उसने मेरे से एक डिमांड की। उसने मुझे बोला कि मैं पूरे के पूरे इलाके का जो हूँ ना, मैं वो हूँ, शहजादा हूँ, प्रिंस हूँ, कंट्रोल करता हूँ। और बोला कि मैं तेरे लिए एक ऑफ़र लेके, और वो ऑफ़र यही है। मुझे लगा पता नहीं क्या ऑफ़र होगी। कहता वो ऑफ़र ये कि दुआएं रोक दे। मैंने कहा हैं? बोला क्योंकि तेरी दुआओं ने मेरा नेटवर्क जाम कर दिया ना। अब मैं इंग्लिश में बोलूँगा। ड्यू टू कंसिस्टेंट नाइट प्रेयर्स विद माई डिसाइपल्स for quite some long time, a red angel, fallen angel, appeared to me and said that I have an offer to make, and that is that he was telling that I was the prince of the area, and he said that I have an offer to make, and that offer is that I just want you to simply stop praying because your prayer has seized my network in that area. ये दुआ करती है। आगे सुनो। When this experience happened, I had this encounter. We did not preach, or we even invited anyone, or even asked anyone to come to us for deliverance meeting. But by its own, our members started increasing. We started getting more famous for night prayers, and more young people started joining, and more deliverances happened, and more witchcraft was broken, and more young people gave their life to Christ and became disciples and submitted under me to learn the word of God and His ways. All these things just happened by staying in one room and praying consistently every night till the sun came up and everything changed. अब मैं उर्दू में बोलूँगा। हमने किसी को मुनादी नहीं की, हमने किसी को इनवाइट नहीं किया, हम किसी के घर नहीं गए, हमने किसी को बोला नहीं कि डिलीवरेंस मीटिंग के लिए आओ। हम बस रात को चुप करके दुआ कर रहे थे, और हमारे ऑटोमेटिकली सिर्फ दुआ करने से मेंबर्स भी बढ़ते गए, बदरूहें भी निकलती गई, और बड़े बड़े शैतान के नेटवर्क टूटते गए। हमारी मिनिस्ट्री बढ़ती चली गई। हमने किसी को भी नहीं बताया, मुफ्त में बिल्कुल फेमस भी होते गए, यहाँ तक कि यहाँ पे पहुँच गए सिर्फ नाइट प्रेयर कर करके। हमने कुछ भी नहीं किया, किसी को पब्लिक मीटिंग नहीं की, किसी के पास नहीं गए, सिर्फ कमरे में बंद रह के दुआ की और सब चीज़ें अचीव कर लिए। Come on! और सिर्फ कमरे में अंदर रहकर दुआ करके, कमरे के अंदर सिर्फ रहकर दुआ करके, मैंने उनसे ज्यादा रूहें बचा ली जो स्टेज के ऊपर खड़े होकर कन्वेंशन करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कन्वेंशन नहीं करो, उनसे बहुत सारी रूहें बचती हैं, ऐसी बात नहीं है। बट विल तलाश करो, विल क्या है खुदा की। So I'm talking that I save more souls by staying in the room and praying than having conventions on stage. I'm not saying don't have conventions. I'm talking about the will. For me, the perfect will was to stay in the room and pray. And I did that, and I saved more souls. मेरे लिए कामिल मर्जी ये थी कि कमरे के अंदर रह के दुआ करना और जाने बचा लेना, और उसका प्रूफ ये सब है। Amen. This all. All right. And by experience, I have learned every time I saw a demon or a witch or a foreign angel that has showed up to me, they always demanded one thing, and that was to stop the prayers. और मैंने ज़ाती तजर्बे से जाना है, जब भी मैंने किसी बुदरू को देखा, किसी जादूगर को देखा, या कोई एक गिराया फरिश्ता मेरे सामने है, उसने हमेशा मेरे से एक ही चीज़ की डिमांड की है, दुआएं रोक दे। किसी चीज़ की दुआ नहीं और नहीं की। They never had problems with my money, with my education, with my ministry, or with my evangelism. All those that came from the demonic world, they had only one common demand and problem with me, and that was stop the prayers, for they irritate us and paralyze us. जब भी शैतानी दुनिया से कोई भी बदरू आया, जादूगर आया, गिराया हुआ फरिश्ता आया, तरह तरह से आया, उन सब का मिला जुला के एक ही डिमांड थी मेरे लिए, और वो यही थी कि दुआएं रोक दे, क्योंकि तेरी दुआएं हमें इरिटेट करती हैं और हमें पैरालाइज कर देती हैं। अब नाउ the book of James says the prayer of a righteous person has great power as it is working. Chapter 5 verse 16. याकूब का खत कहता है कि एक रास्तबाज की दुआ में बहुत असर है। और एम्पलीफाइड वर्जन में तो और मजा है। The amplified version is even more better. It says, the earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working.
और एम्पलीफाइड वर्जन कहता है कि अर्नेस्ट सिंसियर दुआ जो की जाएगी, दिल से जो दुआ की जाएगी एक रास्तबाजी की, उसके अंदर बेशुमार ताकत मुहैया होगी कि वो चेंज लेके आ जाए. Now listen, ending पे हम. Devil is after your nothing but one thing, that is your prayer life. And to have your prayer life, he will attack your many areas of life. इब्लीस आपकी किसी भी चीज के पीछे नहीं है, सिर्फ एक चीज के पीछे है, वो आपकी दुआए जिंदगी. और आपकी दुआए जिंदगी को हासिल करने के लिए वो आपकी जिंदगी के बहुत सारे हिस्सों को हमला करेगा. आगे सुने. In fact, the attack on your everything is just for one thing. In fact, the attack on your everything is just for one thing, and that is your prayer life. Prayer life. हकीकत तो यह है कि आपकी सब चीजों पर हमला सिर्फ आपकी एक चीज पे हमला करने के लिए है, और वो क्या है? Prayer life. आपकी प्रेयर लाइफ. तो हम समरी करेंगे. स्टैंड अप. अब हम समरी डिस्कस करना. नाउ वी विल जस्ट शेयर द समरी, और आई जस्ट स्पीक द समरी, एंड दैट इज द समरी इज सिंपल, एंड दैट इज Satan is only after your one thing, which is prayer, because he knows if you can do properly just one thing, you can have everything. शैतान सिर्फ आपकी एक ही चीज के पीछे है, और वो दुआ है, क्योंकि वो जानता है जब अगर आप सिर्फ ये एक चीज कर ले जो दुआ है. शैतान जानता है कि अगर आप सिर्फ दुआ जो एक चीज है, अगर सिर्फ आप ये एक चीज कर लें तो बाकी सब चीजें आप हासिल कर लेंगे. कट द वीडियो.